Hello students, myself Manohar Chandelia, faculty Zoology. In previous lecture, we have learned about the phylum Protozoa and Porifera, and now we start the next phylum Coelenterata. Coelenterata phylum is more evolved phyla than Porifera, and it also evolved from Porifera. Clear? Porifera animals are pore-bearing animals and sessile animals, whereas coelenterates are sessile as well as free-floating animals. Clear? What is the specific character of Coelenterata? The presence of coelentron is the specific character of coelenterates. Presence of coelentron cavity or gastrovascular cavity is the specific character of coelenterates, and presence of nidoblast cells, nematoblast cells in their body wall is also their specific feature. Clear? These are coined as Coelenterata due to the presence of coelentron cavity, and the term coined by Leuckart. Coelenterata term coined by Leuckart, and the term Cnidaria is given by Hechek. Cnidaria term given by Hechek. तो इसमें Coelenterata नाम जो है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ coelentron कैविटी और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. तो इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के बेस पर Coelenterates टर्म coined by Leuckart, and due to the presence of nidoblast or nematoblast cells in their body wall, Hechek termed the name Cnidaria. Clear? Presence of nidoblast cells and presence of gastrovascular cavity is the specific feature of Coelenterates. Clear? Now we start the general character of Coelenterata. Clear? Now we start the general character of Coelenterata. As like Porifera, we learn about their habit and habitat, their symmetry, germ layer, level of body organization, body shape, body wall, digestion, respiration, skeleton, nervous system. Clear? Reproduction. These are the general character of these animals. तो इसमें एक चीज आप याद रखने की, ध्यान रखने की ये चीजें हैं कि इनको आप कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग ही तैयार कर सकते हैं. अगर आप इसमें सोचें कि ये रेक्टाफिकेशन करके इसमें इतने कैरेक्टर है, इसमें इतने कैरेक्टर है, तो वो रटने के हिसाब से जो है वो आप इसको तैयार नहीं कर सकते. तो इसके लिए जो है वो एक सीधा सा मेथड जो है वो तैयार करने का आपके यही है कि आप कैरेक्टर ध्यान रखें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को अपने को इंक्लूड करना है. क्लियर? वो कैरेक्टर आप आगे से आगे कंपैरिजन करते हुए चलें. जैसे पोरीफेरा में जो कैरेक्टर आपने पढ़े हैं वही कैरेक्टर आपको आगे Coelenterates में बताने हैं, वही कैरेक्टर आपको आगे टीनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थिस में बताने. बस इसमें ध्यान रखना यही है कि आपको केवल कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि पिछले फाइलम में ये हो रहा था, इससे ये हो रहा था, और नेक्स्ट फाइलम में इससे ही हो रहा है. समझ में आ रही है? जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री में आपने पोरीफेरा में पढ़ा कि एसिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, आगे वही सिमेट्री जर्म लेयर का कैरेक्टर Coelenterates में लेना आपको. Coelenterates कैसे हो जाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक है बट सिमेट्री के अकॉर्डिंग वो रेडियल सिमेट्रिकल है, जबकि पोरीफेरा क्या थे? एसिमेट्रिकल थे. ये चीजें एक कंपैरिजन की है. तो कंपैरेटिव स्टडी आप अगर करते चलेंगे तो आप ये सारी चीजें जो है वो ढंग से तैयार कर लेंगे. और अगर आप उसमें याद करने का वो सिस्टम आप रखे, रटने वाला सिस्टम रखे, तो ये तैयार नहीं होंगे. क्योंकि उसमें क्या है, सब में इतने सारे फाइल हैं, आप देख रहे हो 11 फाइल है. ये तो केवल नॉन कोडेट्स. आप कोडेटा में आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा फाइल आएंगे, क्लासेज आएंगी.
तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप ऐसे इसको तैयार नहीं कर सकते। केवल आप कंपैरिजन ध्यान रखें, कैरेक्टर ध्यान रखें, ये कैरेक्टर आपको हर चीज में, हर फाइलम में बताने हैं। क्लियर यहां तक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट। व्हाट इज द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ सिलेंट्रेट्स? मोस्टली सिलेंट्रेट्स are found in marine water and some are found in fresh water. Clear? So first, habitat, mostly marine and some are in freshwater animals. Then habits. What is the habit of coelenterate? Coelenterate are solitary as well as colonial. Clear? Single भी होंगे और colonial भी होंगे. So these are solitary or colonial and they are sessile or free floating. Clear? Their polyps are sessile whereas medusa are free floating. Clear? तो ये sessile भी होंगे और free floating भी होंगे। तो ये habit and habitat। habit and habitat के बाद next level of body organization in porifera. What is the level of body organization? Cellular level of body organization. And in coelentrates and ctenophora, they have tissue level of body organization, in which tissue perform different functions. Clear? So tissue level of body organization. Clear? So tissue level of body organization. Next, germ layer and symmetry. On the basis of germ layer, these are diploblastic, and on the basis of symmetry, these are radial symmetrical, whereas porifera are asymmetrical. Clear? तो ये इसमें germ layer के बेस पर diploblastic and symmetry के बेस पर radial symmetrical. क्लियर? जर्म लेयर के बेस पर डिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिमेट्री के बेस पर ये रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर? ये आपको पहले ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पूरा समझा रखा आपको, ए रेडियल सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान आर 3 टाइप्स: सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब body plan. Clear? Their gastrovascular cavity open outside through a single opening. So this type of body plan is blind sac body plan. Clear? बॉडी प्लान जो है वो कैसा होगा इनका? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान in which complete alimentary canal present which open outside through mouth and anus. तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तब वहां कौन सा बॉडी प्लान होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या इनकम्प्लीट बॉडी कैविटी होगी तो क्या कहेंगे उसको? ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा। क्लियर? तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। नेक्स्ट, body shape. Body shape is cylindrical or umbrella shaped. In polyp stage, they are cylindrical in body shape, and in medusa stage, these are umbrella shaped. Clear? In polyp stage, these are cylindrical body, and in medusa, these are umbrella shaped. Clear? तो body shape cylindrical and umbrella shaped body होगी। Clear यहाँ तक? If they have polyp stage, then body is cylindrical, and if they have medusa stage, then their body is umbrella shaped. Clear? It is umbrella shaped body and it is cylindrical body. Clear? तो body shape cylindrical and umbrella shaped. Clear? Cylindrical in polyp stage and umbrella shaped in medusa stage. Clear? Now their body wall.
Their body wall is bilayered, which comprises of two layer. Outer layer is epidermis and their inner layer is gastrodermis. Clear? Body wall is comprises of two layer. Its outer layer is epidermis. Its outer layer is epidermis and their inner layer is gastrodermis. Clear? And in porifera, body wall also bilayered. Their outer layer is pinecoderm and their inner layer is coenoderm. Clear? Their outer layer is pinecoderm and inner layer is coenoderm. And in coelentrates, outer layer is epidermis and inner layer is gastrodermis. Clear? These are two layers in their body wall. Clear? तो body wall में outer layer epidermis, inner layer gastrodermis. Clear? And in porifera, cellular mesenchyme present between the pinecoderm and coenoderm. Whereas in coelentrates, mesoglia present between the outer layer and inner layer. Clear? Mesenchyme in porifera are cellular, but in coelentrates, mesoglia are cellular or non-cellular. Cells may be present or may be absent. Clear? तो कुछ coelentrates में mesoglia में only gelatinous substance होगा. क्लियर यहां तक? कुछ में coelentrates में जो है वो दोनों लेयर के बीच, ये आप देख रहे हो एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों लेयर के बीच जो है वो कुछ में ए सेलुलर और नॉन सेलुलर मेसोग्लिया होती है जिसमें जेली लाइक सब्सटेंस इनके बीच में भरा होता है. और कुछ coelentrates जो होंगे उनके अंदर इन दोनों के बीच सेल्स प्रेजेंट होती हैं. क्लियर यहां तक? तो सेल्स और फाइबर दोनों प्रेजेंट होते हैं, कईयों में केवल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और कईयों में दोनों ही एब्सेंट होते हैं. क्लियर यहां तक? तो ये इसमें बॉडी वॉल बता दी. आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस एंड देन मेसोग्लिया बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. मेसोग्लिया इज सेलुलर और इट में बी नॉन सेलुलर. क्लियर यहां तक? सेलुलर मेसोग्लिया में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी और नॉन सेलुलर मेसोग्लिया में इनके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस और जिलेटिनस सब्सटेंस होगा. क्लियर यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट नीडोब्लास्ट सेल्स और निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी वॉल. इट इज द specific feature of coelentrate. It is the specific feature of coelentrate. These are also known as nidaria due to nidoblast cells or nematoblast cells. Clear? Nidoblast cells or nematoblast cells are stinging cells which have some toxic substance in their cell, that is hypnotoxin. They contain hypnotoxin, toxic substance in these cells which act as a defense and offense mechanism. क्लियर यहां तक? इनकी जो नीडोब्लास्ट सेल्स या नीमेटोब्लास्ट सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स जो इसमें प्रेजेंट है, वो coelentrates में डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. क्लियर? अगर कोई एनिमी इनके नज़दीक आ रहा है, इनको खाने के लिए, अगर कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एनिमी आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये इन स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. और अगर इनमें किसी प्रे को इनको कैप्चर करना हो, प्रे को पकड़ना हो, तब भी ये उस पर अटैक करने में या उसके साथ साथ ऑफेंस में भी इनका यूज करते हैं. क्लियर यहां तक?
कि इनके अंदर जो है वो क्या होगा, इसमें जो नीडोब्लास्ट सेल्स है उस नीडोब्लास्ट सेल्स में हिप्नोटॉक्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो हिप्नोटॉक्सिन इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, इट इज अ टॉक्सिक सिक्रीशन। तो टॉक्सिक सिक्रीशन जो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करते हैं ये हिप्नोटॉक्सिन क्या काम करेगा, हिप्नोटॉक्सिन जो है वो किसी भी कोई इनिमी आ रहा है या इनके लिए कोई प्रे आ रहा है तो उसको ये बेहोश कर देता है। क्लियर यहाँ तक? तो कोई प्रे इनके नज़दीक आया तो उसको ये बेहोश कर देगा, तो उसके कारण जो है वो क्या होगा, वो जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो अनकॉन्शियस होने के बाद जो है ये उसको टेंटिकल से चिपका लेते हैं और टेंटिकल से चिपका के जो है उसको माउथ के अंदर ले लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों में हेल्प करती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो नीडोब्लास्ट सेल्स या नीमेटोब्लास्ट सेल्स की प्रेजेंस इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है और इन सेल्स में प्रेजेंट हिप्नोटॉक्सिन क्या काम करेगा, इसमें डिफेंस और ऑफेंस दोनों में हेल्प करता है। क्लियर यहाँ तक? या तो इनिमी को बेहोश करके भाग जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, और या फिर उनको पकड़ना हो तो उसको बेहोश करके टेंटिकल से चिपका के अंदर ले लेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स, नीमेटोब्लास्ट सेल्स होगी। स्केलेटन नेक्स्ट, इसमें आप देखें स्केलेटन जो होगा वो जनरली एब्सेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? इनमें स्केलेटन जो है वो जनरली एब्सेंट होगा, लेकिन कुछ कोरल एनिमल्स जो होंगे, कोरल सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर कोरल सिलेंट्रेट्स में ये होता है कि ये कोरल सिलेंट्रेट्स क्या काम करेंगे, कोरल सिलेंट्रेट्स जो है वो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। इनका पूरा का पूरा कॉलोनियल होते हैं ये, तो ये कोरल जो है वो मोस्टली कॉलोनियल होंगे और इनकी जो कॉलोनी होती है, पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या करता है, अपने ऊपर चारों तरफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग फॉर्म करता है। क्लियर यहाँ तक? तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग फॉर्म कर रहा है, जो स्टोन बना रहा है अपने चारों तरफ ऊपर की तरफ, वो क्या होता है, इनमें कोरल रीफ बन जाती हैं। वो क्या, इनका कोरल रीफ बन रही है, और वो कोरल रीफ जस्ट लाइक देयर एक्सोस्केलेटन, कोरल रीफ जस्ट लाइक देयर एक्सोस्केलेटन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लियर? तो ये इसमें कोरल रीफ जो है उसकी फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू करते हैं, और ऐसे एनिमल्स कोरल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है, कोरल रीफ बन रही है, वो एनिमल्स भी कोरल होते हैं। अब तक की लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये इसमें ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, जो अब तक की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ। क्लियर? और कितनी बड़ी है ये? लगभग जो है वो 2000 किलोमीटर। क्लियर? लार्जेस्ट कोरल रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो लार्जेस्ट बैरियर रीफ लिया, लार्जेस्ट कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, वो 2000 किलोमीटर लेंथ की है, जो कहाँ बनी हुई है? ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। क्लियर? तो ये इसमें इसका स्केलेटन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट एक जो है वो इसमें इन एनिमल्स में जो कोरल होते हैं, इन कोरल के अंदर ये ऊपर की तरफ जो रीफ बन रही है वो एक्सोस्केलेटन की तरह इनमें काम करके इनको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद इनके सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? इनमें गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रोन कैविटी। क्लियर? सिलेंट्रोन कैविटी और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट इन देयर सेंटर पार्ट, which help in the digestion and circulation of digested food, so it also called as gastrovascular cavity. Clear? Gastro means gastro related to digestion and vascular related to circulation. Clear? Gastro
related to digestion and vascular related to circulation. So the gastrovascular cavity act as digestion as well as circulation of digested food, so it is called gastrovascular cavity or cylindrone cavity. Clear? Gastrovascular cavity या cylindrone cavity फर्स्ट टाइम सिलेंट्रेट एनिमल्स में ही ऑब्जर्व की गई है. इसको सबसे पहले जो है वो सिलेंट्रेट एनिमल्स में इनको ऑब्जर्व किया गया, इसीलिए उसको सिलेंट्रेटा नाम दिया गया. क्लियर यहाँ तक? उन्हें सिलेंट्रेटा नेम क्यों दिया? सिलेंट्रोन कैविटी की प्रेजेंस के बेस पर. और ये सबसे फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व हुई थी वो किस में हुई थी? सिलेंट्रेट्स एनिमल में. क्लियर यहाँ तक? तो सेंट्रल पार्ट में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी होगी, और ये सिलेंट्रोन कैविटी जो है वो एक ही सिंगल ओपनिंग से बाहर ओपन होती है, माउथ से. क्लियर यहाँ तक? ये इनमें गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी है. ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी एक सिंगल ओपनिंग माउथ से ओपन होती है. तो ये सिंगल ओपनिंग माउथ से बाहर की तरफ ओपन हो रही है, तो ये क्या होगा? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा. क्लियर यहाँ तक? ओनली ए सिंगल ओपनिंग माउथ एक्ट एज माउथ एंड एनस. दोनों ही फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा इसमें? माउथ ही दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फूड इनटेक भी इसी से होगा और फूड इजेस्ट भी माउथ से करेंगे. तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको इजेस्ट करने का काम भी माउथ और उसको इनटेक करने का फंक्शन भी माउथ करता है. क्लियर यहाँ तक? तो ये उसको इनटेक करने और इजेस्ट करने के दोनों फंक्शन जो है वो माउथ परफॉर्म कर रहा है. तो इस तरह का है, इनके अंदर सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ की होती है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. क्लियर यहाँ तक? इट इज अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इन विच माउथ एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस. क्लियर? तो ये इसमें बता दिया. उसके बाद जो है वो माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. क्लियर? माउथ के चारों तरफ जो है वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे टेंटिकल्स जो है वो माउथ के चारों तरफ इसमें प्रेजेंट होंगे, जो फूड को इनटेक करने में भी और उसके साथ साथ इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. क्लियर यहाँ तक? माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एंड द टेंटिकल्स आर act as intake of food and they also perform locomotion. क्लियर यहाँ तक? तो लोकोमोशन अगर करेंगे तो ये इन टेंटिकल्स के थ्रू लोकोमोशन करेंगे और उसके साथ साथ फूड को इनटेक करने का काम भी टेंटिकल्स करेंगे. क्लियर यहाँ तक? ये इसमें हो गए माउथ के. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्लियर? बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा. सेल के अंदर भी हो रहा है और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में भी होगा. तो सेल के अंदर और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में दोनों में डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्लियर? इट इज द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन द सेल एंड बिटवीन द सेल. क्लियर? तो दोनों तरह के इसमें डाइजेशन होंगे. रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू their body surface. Clear? No any specific digestive, no any specific respiratory and excretory organ found in coelenterate. Clear? Only their body surface are exchange of gases and they also perform excretion. Clear? excretory matter को बाहर निकाल देंगे. मोनोटेलिक होते हैं जो अमोनिया को वाटर में रिलीज कर देंगे. क्लियर? यहाँ तक सारे के सारे एक्वेटिक है, तो अमोनिया को वाटर में रिलीज भी कर देंगे और उसके साथ साथ O2 CO2 का एक्सचेंज भी इनकी बॉडी सरफेस से ही करेंगे. क्लियर? तो ये इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस. तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस. क्लियर? नेक्स्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ नर्वनेट. नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम इवोल्व्ड इन सिलेंट्रेटा. Nervous system first time evolved in Coelenterata, which found in the form of nerve net. In this,
non-polar neurons are joined to form a nerve net in their whole body. तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो है वो इसमें कैसे अरेंज होंगी, स्टेप से जो है वो इसकी नॉन पोलर न्यूरॉन्स होंगी। या अपने न्यूरॉन्स के टाइप आपने पढ़ रखे हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर। क्लियर? स्टेप से ये नॉन पोलर न्यूरॉन है वो एक दूसरे के साथ सिनेप्स फॉर्म करेंगे और एक दूसरे के साथ सिनेप्स फॉर्म करते हुए जो है वो क्या बना देंगे, नर्व नेट की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हुए, एक दूसरे के साथ सिनेप्स बनाते हुए पूरी बॉडी में नर्व नेट की फॉर्मेशन कर देती हैं। और बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर स्टिमुलस इसको मिल रहा है तो स्टिमुलस को रिसीव करते ही वो स्टिमुलस वन टू अनदर सेल्स में, नर्व सेल्स में जो है वो कंडक्ट होगा और वो कंडक्ट होते हुए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और पूरी बॉडी ही उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। क्लियर यहाँ तक? दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व नेट। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम जो है वो सिलेंट्रेट्स एनिमल्स में और निडेरिया एनिमल्स में जो है वो सबसे पहले इवोल्व हुआ था। क्लियर यहाँ तक? इससे पहले पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम इवोल्व नहीं था। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसके सेंस ऑर्गन्स आर स्टेटोसिस्ट, ओसिलाई एंड ऑल्फैक्टरी पिट। स्टेटोसिस्ट आर देयर बैलेंसिंग ऑर्गन, ये स्टेटोसिस्ट बैलेंस में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट ओसिलाई, दीज आर द फोटो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी पिट, इट इज द स्मेल रिसेप्टर। क्लियर यहाँ तक? ओसिलाई भी वेल डेवलप्ड इनमें नहीं होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर की फॉर्म में कुछ ओसिलाई इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी पिट, ये इनके स्मेल रिसेप्टर होंगे। तो ये इसके सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद मोस्टली बाइसेक्सुअल, फ्यू एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल बट मोस्टली दीज आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बडिंग, asexual reproduction by budding and sexual reproduction by gametic fusion. Asexual reproduction आपने पोरीफेरा में पढ़ा है by gemmules. Gemmules are endogenous budding and the exogenous budding found in cotyledons. Clear? इसमें आप देख रहे हैं ये जो है वो बड इसमें बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये एक्सोजिनस बडिंग है, जबकि पोरीफेरा में आपने पढ़ा था एंडोजिनस बडिंग होती है। उस एंडोजिनस बडिंग से जैम्यूल्स बन रहे हैं और सिलेंट्रेट्स में जो है वो एक्सोजिनस बडिंग होती है, बाहर की तरफ बड बन रही है। तो ये इसमें एक्सोजिनस बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू गैमेटिक फ्यूजन। क्लियर यहाँ तक? गैमेट्स के फ्यूजन से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेटिक फ्यूजन से जाइगोट बनाएंगे, उससे न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमेटिक फ्यूजन। उसके बाद एक बार इसमें आपको बताना है कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ये पॉलिप एंड मेडूसा दो स्टेज इनकी लाइफ में बनती हैं। क्लियर? पॉलिप एंड मेडूसा दो स्टेज इनकी लाइफ में बन रही हैं, एक पॉलिप स्टेज, दूसरी मेडूसा स्टेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा? पॉलिप आर सिलिंड्रिकल इन शेप whereas medusa are umbrella shaped. Polyp are sessile and medusa are free floating. Polyp asexually reproduce whereas medusa are sexually reproduce. Clear? तो polyp cylindrical body shape, polyp cylindrical and medusa umbrella shaped. Medusa umbrella shaped. Clear? Polyp are sessile and medusa are free swimming or free floating. Medusa are free swimming or free floating. क्लियर? तो पोलिप एक जगह पे फिक्स होंगे, सबस्ट्रेटम पे चिपके रहेंगे, और मेडूसा जो है वो फ्री फ्लोटिंग करते रहेंगे, फ्री स्विमिंग होते हैं। पोलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पोलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडूसा में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? पोलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर यहां तक? तो ये क्या डिफरेंस हो गए? पोलिप सिलिंड्रिकल इस टाइप के होंगे, मेडूसा इस टाइप के अम्ब्रेला शेप्ड होंगे। क्लियर? उसके बाद पोलिप आर सेसाइल सबस्ट्रेटम पर चिपके रहेंगे और मेडूसा आर फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, पोलिप परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडूसा परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? बट इन सम सिलेंट्रेट्स पोलिप and medusa are exhibit alternation of generation in which polyp produce medusa by asexual reproduction. Polyp produce medusa by asexual reproduction. तो पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडूसा प्रोड्यूस पोलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इसमें पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडूसा प्रोड्यूस पोलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। This type of alternation of generation is known as metagenesis. यह भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिनके अंदर जो है 18 या 19 में ही आया है, जस्ट इसमें 1-2 साल पहले ही, जिसमें बताया कि पोलिप और मेडूसा जो है इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगा। उसमें मेटाजेनेसिस क्या होगा? पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय asexual reproduction and medusa produce polyp by sexual reproduction. Clear? तो ये polyp produce medusa by asexual reproduction and medusa produce polyp by sexual reproduction. This type of alternation of generation is known as metagenesis. Clear? कुछ जगह पे पोलिप और मेडूसा एक साथ बड़े ग्रुप में जो है वो एक साथ रहते हैं, जिसको क्या कहेंगे? कॉर्मीडिया। इट इज द कॉर्मीडिया in which polyp and medusa both are found in a large group. Clear? So the group of polyp and medusa is known as chormidia. Clear? They perform indirect development. They perform indirect development in which planula and ephyra larva is formed. Clear? तो इसमें प्लेनुला और इफायरा लार्वा जो है वो इसमें बनते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, जिसमें कौन से लार्वा बन रहे हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो है वो प्लेनुला और इफायरा लार्वा प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? अब ये जनरल कैरेक्टर हो गए। जनरल कैरेक्टर के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। Classification. Porifera classify into 3 classes and Coelenterate also classified into 3 classes on the basis of their polyp and medusa stage. Clear? तो इनकी लाइफ साइकिल में पोलिप और मेडूसा स्टेज के अकॉर्डिंग जो है वो इनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। वन इज Calcarea, so these are hydrozoa, second Scyphozoa, and Anthozoa. Clear? So Coelentrates are classified into 3 classes: Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. First
हैबिटेट में डिफरेंस, हाइड्रोजोआ आर मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर में होंगे। तो हाइड्रोजोआ जो है वो मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट होंगे। साइफोजोआ ओनली मैराइन वाटर में और एंथोजोआ भी मैराइन वाटर में। क्लियर? हाइड्रोजोआ फाउंड इन ओनली हाइड्रोजोआ फाउंड इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर, साइफोजोआ इन मैराइन वाटर एंड एंथोजोआ इन मैराइन वाटर। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस मीजोग्लिया। मीजोग्लिया नॉन सेलुलर मीजोग्लिया, मीजोग्लिया में मीजोग्लिया सेल्स एब्सेंट, मीजोग्लिया में सेल्स एब्सेंट होगी, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होगी इनकी। ये सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट, इसमें सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट, सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट और एब्सेंट। कुछ में सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट भी होते हैं, कुछ में ये सेल्स और फाइबर एब्सेंट भी होते हैं। क्लियर? इसके बाद एक इनके अंदर जो है वो आपको मैंने बताया था किस बेस पे है, ये पोलीपोर मेडुसा के बेस पर है। तो इसमें हाइड्रोजोआ में पोलिप एंड मेडुसा, हाइड्रोजोआ में पोलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेज होती है। क्लियर? हाइड्रोजोआ में पोलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेज होती है। इट मीन्स दे ऑल्सो एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। क्लियर? बट हाइड्रा इज द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजोआ क्लास। हाइड्रा जो है वो इस हाइड्रोजोआ क्लास का एक्सेप्शन है, जिसमें केवल ओनली पोलिप स्टेज बनेगी। क्लियर यहां तक? तो इसमें ओनली पोलिप स्टेज होगी, हाइड्रा में केवल पोलिप स्टेज है, बाकी सब हाइड्रोजोआ में पोलिप एंड मेडुसा। उसके बाद साइफोजोआ में ओनली मेडुसा स्टेज एंड एंथोजोआ में ओनली पोलिप स्टेज। क्लियर? इसमें जो है वो बॉडी लाइफ में जो स्टेजेस है वो इसमें हाइड्रोजोआ में पोलिप एंड मेडुसा, इन साइफोजोआ ओनली मेडुसा एंड इन एंथोजोआ ओनली पोलिप स्टेज प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोब्लास्ट सेल्स, इनके अंदर हाइड्रोजोआ में नीडोब्लास्ट सेल्स है वो केवल एपिडर्मिस में होगी। इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होगी और इनमें भी दोनों में प्रेजेंट होगी। तो नीडोब्लास्ट सेल्स इन नीडोब्लास्ट सेल्स इन एपिडर्मिस, तो इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स केवल एपिडर्मिस में होगी। इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स इन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होगी। इनमें भी नीडोब्लास्ट सेल्स एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होंगी। क्लियर? तो इनमें आप देखें एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इसमें भी एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स है वो केवल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जर्म सेल्स आर अराइज फ्रॉम, germ cells are arise from epidermis and germ cells are arise from gastrodermis, and in anthozoa germ cells arise from gastrodermis. Clear? germ cells किससे बन रही है इनमें? germ cells arise from epidermis, germ cells arise from gastrodermis and germ cells arise from, इसमें एपिडर्मिस से बनेगी जर्म सेल्स, इनमें जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मिस एंड जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर? तो इसमें हाइड्रोजोआ में जर्म सेल्स जो है वो एपिडर्मिस से बनेगी, साइफोजोआ में गैस्ट्रोडर्मिस से, और एंथोजोआ में भी जर्म सेल गैस्ट्रोडर्मिस से बनेगी। क्लियर? ये इसमें इसके डिफरेंस हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल, in hydrozoa
हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। एग्जाम्पल जो है वो इनके क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल हाइड्रोजोआ में एग्जाम्पल हाइड्रा, कॉमन नेम फ्रेश वाटर पोलिप, हाइड्रा कॉमन नेम फ्रेश वाटर पोलिप। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल ओबेलिया, कॉमन नेम सीफर, कॉमन नेम सीफर, और फाइसेलिया, फाइसेलिया कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। तो फाइसेलिया को पोर्तुगीज का मैन ऑफ वार कहेंगे। और इसमें साइफोजोआ में एग्जाम्पल जो है वो एक तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओरिलिया, ओरिलिया कॉमन नेम जेलीफिश, ओरिलिया कॉमन नेम जेलीफिश। इसके अलावा साइनिया, साइनिया कॉमन नेम संजेली। तो ओरिलिया कॉमन नेम जेलीफिश होगा, साइनिया कॉमन नेम संजेली। इसके आगे जो है वो एंथोजोआ, एंथोजोआ में एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एंथोजोआ के एग्जाम्पल एक तो मैट्रीडियम या एडम्सिया, मैट्रीडियम या एडम्सिया। तो इसका एग्जाम्पल मैट्रीडियम या एडम्सिया होगा। उसमें कॉमन नेम क्या होगा इसका? सी एनिमोन, सी एनिमोन, जो यूपेगुरस के साथ क्या करेगा ये सी एनिमोन जो है वो यूपेगुरस जो इसमें हर्मिट क्रेब होता है उसके साथ कमेंसलिज्म शो करेगा। तो मैट्रीडियम या एडम्सिया सी एनिमोन। इसके अलावा जो है वो इसमें पिनेटुला, पिनेटुला इनके अंदर जो है वो जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है वो इसमें एनिमोन्स कोरल्स होते हैं, और जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती वो इसके एनिमोन्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये सी एनिमोन, पिनेटुला कॉमन नेम सीपेन, गोर्गोनिया, गोर्गोनिया कॉमन नेम सीफेन, गोर्गोनिया कॉमन नेम सीफेन। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट एल्सायोनियम, एल्सायोनियम कॉमन नेम डेडमैन्स फिंगर, डेडमैन्स फिंगर। क्लियर? और उसके अलावा इसमें और क्या होंगे? एल्सायोनियम जो है वो डेडमैन्स फिंगर होंगे, और एक उसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हो पिनेटुला हो गया, और मिएंड्रीना ब्रेन कोरल, मिएंड्रीना कॉमन नेम ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। क्लियर? ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एस्ट्रिया है, स्टार कोरल है, हिलियोपोरा, ब्लू कोरल होता है, कोरेलियम रेड कोरल होता है, ये भी सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन और उसके सारे एग्जाम्पल हो गए। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। Ctenophora is a small phylum which includes some species. Ctenophora जनरली जो है वो एक माइनर फाइलम की तरह मानते हैं जिनके अंदर
बहुत ही कम स्पीसीज जो है वो इसमें इंक्लूड की गई है। क्लियर? तो नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा Ctenophora is a minor phylum in non-chordata animals which include few species, and the term Ctenophora coined by Escasbold, term Ctenophora coined by Escasbold। क्लियर? तो ये टर्म जो है वो किसने दी? टीनोफोरा, एस्केसबोल्ड्स ने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीनोइड प्लेट्स। टीनोइड और कॉम्ब प्लेट्स, इन टीनोइड्स और कॉम्ब प्लेट्स की प्रेजेंस के बेस पर जो है वो इनको टीनोफोरा नाम दिया गया। तो ये एनिमल्स जो है इनके अंदर 8 कॉम्ब प्लेट्स या टीनोइड प्लेट्स प्रेजेंट होंगी जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। इस बेस पर इनको टीनोफोरा नाम दिया है। क्लियर? टीनोफोरा एनिमल्स में इनके टीनोफोरा का अगर आप देखें तो ये बॉडी जो है वो इनकी इस टाइप की वॉलनट शेप बॉडी होती है। टीनोफोरा में बॉडी वॉलनट शेप बॉडी होगी। तो ये इसमें टीनोफोरा एनिमल्स में ऐसे वॉलनट से बॉडी होगी और इनके अंदर जो है वो ऐसी 8 कॉम्ब प्लेट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगी। तो ये 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होगी इसमें। इनके अंदर जो 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होगी ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। और इन कॉम्ब प्लेट्स या इन टीनोइड प्लेट्स की प्रेजेंस के बेस पर इसको क्या नाम दे दिया? कॉम्ब प्लेट्स या टीनोइड प्लेट्स की प्रेजेंस के बेस पर इसको टीनोफोरा नाम दिया। क्लियर? तो इस टाइप से जो है वो ये इसकी टीनोइड प्लेट्स या कॉम्ब प्लेट्स है वो इसमें प्रेजेंट होगी। इस टाइप से जो है वो इन एनिमल्स में है, जैसे ये टीनोप्लेना है, इनके अंदर जो है वो एनिमल्स में ये 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होगी जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स टीनोइड प्लेट्स या कॉम्ब प्लेट्स होगी। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट देयर जनरल कैरेक्टर्स। देयर जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट जनरल कैरेक्टर्स जो है वो हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ऑल इंडिविजुअल्स और ऑल स्पीसीज आर फाउंड इन मैराइन वाटर। क्लियर? तो एक्सक्लूसिवली मैराइन, सॉलिटरी और फ्री फ्लोटिंग। दे हैव solitary and they are free living और free floating। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें कहीं भी ये फिक्स्ड नहीं होते। तो ये सॉलिटरी, ये हैबिट होगी इसकी, सॉलिटरी एंड फ्री फ्लोटिंग, सॉलिटरी एंड फ्री फ्लोटिंग। तो ये इनमें एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, सॉलिटरी एंड फ्री फ्लोटिंग। ये क्या होगा इसकी? हैबिट एंड हैबिटेट। क्लियर? नेक्स्ट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट्स में जो आपने पढ़ा है ये लगभग जो है वो सिलेंट्रेट्स से सिमिलर जो है वो उसमें होते हैं। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर जिस तरीके से टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसे ही इनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जर्म लेयर एंड सिमेट्री। On the basis of germ layer, these are diploblastic and biradial symmetry. Clear?
तो डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर होगी इनमें, डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल, तो डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल, तो सिमेट्री में बाइरेडियल हो गई विच इज द टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, blind sac body plan in which their gastrovascular cavity also open through a single opening that is called mouth। तो माउथ सिंगल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर ओपन हो रही है कैविटी इनकी, सो इट इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी शेप, इनकी बॉडी शेप जो है वो जनरली वॉलनट शेप की बॉडी होती है और इसके साथ साथ इनमें अट्रैक्टिव कलरिंग होती है। क्लियर यहां तक। तो इसमें वॉलनट शेप बॉडी, वॉलनट शेप बॉडी विद अट्रैक्टिव कलरिंग, विद अट्रैक्टिव कलरिंग, अट्रैक्टिव कलरिंग वाली जो है वो इसमें वॉलनट शेप बॉडी होगी और ये अट्रैक्टिव कलरिंग जो है उसके कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा टीनोफोर एनिमल्स जो है वो पॉपुलर रहे हैं। इनके अंदर एक बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी इनमें प्रेजेंट होती है। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स दे एमिट लाइट एनर्जी फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस। तो ये इनके अंदर जो है वो रात को या अंधेरे में जो है वो ये जुगनू की तरह चमकते हैं कि अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी की फॉर्म में एमिट करते हैं। क्लियर यहां तक। क्या कहेंगे इस प्रॉपर्टी को? बायोल्यूमिनेसेंस। दे हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, दे हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी जो है वो इसमें प्रेजेंट होगी इनमें। क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होगी। डाइजेशन जो है वो इनमें सिलेंट्रेट्स की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे। क्लियर। लगभग जो है वो इनके अंदर सिलेंट्रेट्स की तरह जो है वो इनमें सिमिलरिटीज होती हैं। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे और इनके अंदर जो है वो क्या होगा, ये बॉडी सरफेस से ही रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन करेंगे। तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन through general body surface, respiration and excretion through body surface by simple diffusion। Clear। next ये इसमें respiration and excretion, then skeleton absent होगा इनमें, skeleton absent, सिलेंट्रेट में भी स्केलेटन जनरली जो है वो एब्सेंट होता है, केवल कोरल्स जो होते हैं उनके ऊपर कोरल रीफ प्रेजेंट होती हैं। क्लियर यहां तक। और इनके अंदर स्केलेटन एब्सेंट होगा। नेक्स्ट सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ नर्वनेट। देन रिप्रोडक्शन के बेस पर ये बाइसेक्सुअल होंगे और इनके अंदर जो है वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर। तो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लियर यहां तक। तो बाइसेक्सुअल है एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटिक फ्यूजन
फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होगा, वाटर बॉडी में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। बाइसेक्सुअल होंगे, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इसमें डेवलपमेंट, एक इनके अंदर जो है वो इसमें डेवलपमेंट जो है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन विच साइडिपिड लार्वा फॉर्म, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन विच साइडिपिड लार्वा फॉर्म। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं जिसमें साइडिपिड लार्वा बनेगा। एक जो है वो इनके अंदर सिलेंट्रेट्स की तरह नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होती। क्लियर यहाँ तक, ये इनमें डिफरेंस है मेजर। सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी लेकिन इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होंगी। तो नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होती है इसीलिए इनको एनिडेरिया कहेंगे। नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट, और नीडोब्लास्ट सेल्स के एब्सेंट होने के कारण इनको क्या कहेंगे, एनिडेरिया। दीज आर एनिडेरिया। तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो इनमें एब्सेंट होगी, इस कारण इसको क्या कहेंगे, एनिडेरिया कहेंगे। एक इनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक सेल्स, लेसो सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर यहाँ तक, इनमें टेंटिकल्स पे कुछ स्पेसिफिक सेल, लेसो सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो लेसो सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम क्या होता है, ये स्प्रिंग लाइक सेल्स होती हैं। इनके अंदर जो फिलामेंट होता है स्प्रिंग लाइक फिलामेंट होगा, और ये लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स है, ये इसके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, जनरली कार्निवोर्स होते हैं सारे, सॉलिटरी एंड फ्री फ्लोटिंग एंड कार्निवोर्स एनिमल्स। ये कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो ये कार्निवोर्स होंगे। और दूसरा जो है इसके अंदर जो लेसो सेल्स है, कोलोब्लास्ट सेल्स है, वो इनके प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं। क्लियर यहाँ तक, ये किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह होती हैं। इनमें जैसे ही ये सेल्स जो है वो लेसो सेल्स ओपन होती हैं ऐसे, उसमें स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग जो पूरी स्ट्रेट हो जाती है और उसके बाद उसमें लपेट के उसको और ये अंदर ले लेते हैं। क्लियर यहाँ तक, इस तरीके से जो है वो ये लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स इसमें फंक्शन करती हैं। क्लियर यहाँ तक, तो ये स्पेसिफिक लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स की प्रेजेंस होगी, नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें एब्सेंट होंगी। कुछ एनिमल्स में इनमें टेंटिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ में टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक, टेंटिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इसको आगे क्लासिफाई किया है, एक टेंटिकुलेटा और दूसरा न्यूडा। क्लियर, तो दीज आर द जनरल कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो टीनोफोरा का किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स। तो टेंटिकल के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया है उनमें दो क्लासेस हैं। फर्स्ट टेंटिकुलेटा, सेकेंड क्लास न्यूडा। टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा, टेंटिकल एब्सेंट, ये इनमें मेन डिफरेंस यही है, टेंटिकल एब्सेंट होंगे। सॉरी, टेंटिकुलेटा में टेंटिकल प्रेजेंट, टेंटिकुलेटा में टेंटिकल प्रेजेंट होंगे और न्यूडा में ये टेंटिकल एब्सेंट। क्लियर, टेंटिकुलेटा में टेंटिकल प्रेजेंट होंगे, न्यूडा में टेंटिकल एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल इनके एक टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेंकिया। एग्जाम्पल टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेंकिया, जिसको सी गुजबेरी कहेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेंकिया, और इसके एग्जाम्पल बैरोई। न्यूडा का एग्जाम्पल बैरोई होगा, जिसका कॉमन नेम फ्लोटिंग आइज ऑफ कैट, फ्लोटिंग आइज ऑफ केट। तो इसको केट की फ्लोटिंग आइज क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है ये बायोलुमिनिसेंस की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है।
बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होने के कारण जो है वो क्या करते हैं, ये अंधेरे में चमकते हैं। समझ में आ गई ना, लाइट एनर्जी एमिट करते हैं, अंधेरे में चमकने के कारण जो है वो इनको कहा जाता है फ्लोटिंग आईज ऑफ कैट। ऐसा लगता है ये जैसे मैराइन वाटर में है और मैराइन वाटर के अंदर ये इसे अंधेरे में चमकते हुए दिखेंगे तो ऐसे लगता है कि बिल्ली की आंखें जो है उसमें तैर रही हो। समझ में आ गई, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग आईज ऑफ कैट। क्लियर। तो ये आपने देखा, ये सारा टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर और उसके साथ साथ टीनोफोरा का क्लासिफिकेशन। क्लियर, ओके, समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो हम स्टडी करेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको तरीका एक ही बता रखा है, बेस्ट से बेस्ट तरीका इसका याद करने का या तैयार करने का यही है कि केवल आप कैरेक्टर को कंपैरेटिवली तैयार करते चलें। समझ में आ गई, आगे के फाइलम पढ़े तो पीछे वाला फाइलम उसके साथ इंक्लूड करते हुए चलेंगे। पिछले में इससे हो रहा था, उससे आगे वाले में इससे हो रहा है, उससे आगे वाले में इससे हो रहा है। क्लियर यहाँ तक, ये एक तरीका है याद करने का। ठीक है, ओके, बाय।